Welcome to English Grammar class, dear students. So, before I continue with today's work, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear students, let's continue with our today's topic, which is story writing. And for this, open your books at page number 209. Chapter number 13, Story Writing. Stories are made up of a few important constituents. Let's see what they are. So, stories बहुत सारे important चीज़ों को मिला के बनती हैं. तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. फर्स्ट स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, डिटेल्स, suspense, language. So, plot is the central structure of the story. It also includes the story outline. So, plot को हम बोल सकते हैं एक rough sketch जिसके around story बनेगी. By details, one means the particulars and the facts required to flesh out the plot. प्लॉट को फिल करने के लिए उसमें कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको हम डिटेल्स बोलेंगे. देयर शुड बी सम कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी टू मेक इट रिलेटेबल. अब स्टोरी के साथ आप रिलेट कर सको, इसी वजह से उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स भी होने चाहिए. डायलॉग बिटवीन द कैरेक्टर्स मेक अ स्टोरी रिलेटेबल एंड रेस्क्यूज इट फ्रॉम सीमिंग ड्रैब और बोरिंग. अब स्टोरी को बोरिंग होने से बचाने के लिए उसमें डायलॉग्स भी होने चाहिए. सो वो डायलॉग स्टोरी को रिलेटेबल बनाएंगे और उसको बोरिंग और ड्रैप नहीं होने देंगे. लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग द स्टोरी रीडेबल एंड अट्रैक्टिव. स्टोरी को पढ़ने के लायक बनाने के लिए उसमें लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी अच्छे यूज़ करने चाहिए. देयर शुड बी समथिंग इन द स्टोरी दैट मेक्स द रीडर वॉन्ट टू रीड ऑन टू फाइंड आउट what is to happen next. This would be suspense. अब स्टोरी में कोई ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए कि अगर आपने स्टोरी रीड करनी शुरू की है तो आप अंत तक उसको रीड करते ही जाएं. उस चीज़ को सस्पेंस बोलेंगे. स्टोरीज कैन बी रिटन बेस्ड ऑन मॉरल्स, अ गिवन आउटलाइन, इनकम्प्लीट हिंट्स, अ बिगिनिंग लाइन और एन एंडिंग लाइन, पिक्चर्स, one's imagination, वंस एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. अब स्टोरी को इन 6 बेसिस पे आप लिख सकते हो. हियर वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट 4 बेसिस फॉर राइटिंग अ स्टोरी. अब हम पहले जो 4 बेसिस हैं उनके अकॉर्डिंग स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं उनकी एग्जाम्पल्स रीड करेंगे. नेमली मॉरल्स, आउटलाइंस, पिक्चर्स एंड हिंट्स. First is, let us see how we can write a story based on a given outline. अब outline given जो होगी आपको उसके according आप story कैसे लिख सकते हो. Outline is, Ram and Shyam were fighting. Both said the mango tree was theirs. Fist fight. People dragged them to court. Akbar puzzled. Birbal said divide the fruits of the tree between the two. Cut the tree in half, give 1/2 to each. Ram happy, Shyam cries out, agrees to give up the tree. Birbal says that his love for the tree proves he is the owner. सो ये आउटलाइन थी. इसके अकॉर्डिंग राम और श्याम के बीच में फ़ाइट हो रही थी मैंगो ट्री को लेकर, और दोनों फिर बीरबल के पास गए और बीरबल ने इस मैटर को सॉल्व किया और उसने बताया कि जो राम है, राम ट्रू ऑनर नहीं है और श्याम वहाँ का मैंगो ट्री का ट्रू ऑनर है. सो नाउ लेट्स राइट द स्टोरी अकॉर्डिंग टू दिस. राम एंड श्याम वर इन अ फाइट. Both of them said they owned the same mango tree. They went up to Birbal and asked him to decide the matter once and for all.
who was the true owner of the mango tree. Birbal said, "There is only one way to settle the matter. First, you must take all the fruits of the tree. Each of you should take half the mangoes. Then you must cut down the tree and divide the trunk in half. Each of you should take half the wood too. Then everything will be fair. This is what I say." Ram thought it was all a good idea and he said so. But Shyam said, "Your Honor, I have tended that tree for 7 years. If you must, give the mango tree to Ram, but do not make us cut it down." "What you have said told me all I need to know," said Birbal. Then he said that Shyam was the true owner of the mango tree. जो आउटलाइन गिवन थी और जितने भी इसमें लाइंस गिवन थी वो सारी लाइंस हमने स्टोरी में कवर की हैं और उसके अलावा हमने कुछ लाइंस अपने आप से भी ऐड की हैं। तो स्टोरी में राम और श्याम मैंगो ट्री के ऊपर फाइट कर रहे थे। तो बीरबल ने बताया कि उसको अगर मैंगो ट्री के जितने भी मैंगोज़ हैं उनको दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दो, उसके बाद उसको कट डाउन करके जो उसकी लकड़ी निकलेगी उसको भी दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दो। तो ये सुन के राम खुश हो गया बट श्याम रोने लगा। श्याम इसलिए रोने लगा क्योंकि उसने उस ट्री को खुद से बड़ा किया था, उसको पानी दे के उसकी केयर करके। तो ये सुन के बीरबल को पता चल गया कि जो श्याम है वो मैंगो ट्री का ट्रू ओनर है। सो नाउ लेट्स रीड द सेकेंड। लेट अस नाउ सी हाउ टू राइट अ स्टोरी टू ब्रिंग आउट अ मॉरल। अब अगर एक मॉरल गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी कैसे बना सकते हो। मॉरल इज़ लक डज नॉट फेवर अस ऑलवेज, कि हमारा जो लक है वो हमेशा हमारी हेल्प नहीं कर सकता। The story will be a salt seller used to carry his salt bags on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and the bag became light to carry. The donkey was happy. तो एक salt seller और donkey रोज़ मार्केट में जाते थे सॉल्ट बैग्स के साथ। जो सॉल्ट बैग्स थे वो डोंकी के ऊपर लदे होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो डोंकी था वो गलती से स्ट्रीम के अंदर स्टम्बल डाउन हो गया, कि वो नीचे गिर गया। तो जो सॉल्ट था उसके बैग्स में वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, घुल गया। तो डोंकी को क्या पता चला कि जो बैग्स थे अब वो लाइट हो गए थे, उनका जो वेट था वो कम हो गया था कैरी करने के लिए। तो इससे डोंकी खुश हो गया। देयर आफ्टर द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे। उसके बाद डोंकी ने सेम ट्रिक हर रोज़ ट्राई करनी शुरू कर दी। मतलब हर रोज़ वो नमक को पानी में घोल देता था ताकि जो उसके बैग्स का नमक है वो पानी में घुल जाए और उसको ज़्यादा वेट कैरी ना करना पड़े। The salt seller came to understand the trick and decided to teach the donkey a lesson. The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Salt seller ने उसकी इस ट्रिक को पकड़ लिया और उसने अगले दिन कॉटन बैग उस डोंकी के ऊपर लोड कर दिए। पहले वो सॉल्ट के बैग्स थे, अब वो कॉटन बैग्स को उसके ऊपर लोड कर देता है। Again, it played the same trick, hoping that the cotton bag would become lighter. तो डोंकी ने क्या किया, उसने फिर से वही ट्रिक की कि उसने कॉटन को भी पानी में घोलने की कोशिश की। But the bad cotton only became heavier to carry and the donkey suffered. It learned a lesson. It didn't play the trick anymore after that day and the salt seller was happy. तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने कॉटन को पानी में घोलने की कोशिश की तो कॉटन तो पानी में घुल नहीं सकती। तो क्या हुआ, कॉटन और भी ज़्यादा पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करने लगी और जो बैग्स थे वो और भी ज़्यादा हैवी हो गए। तो जो लाइट तो क्या होना था, वेट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उस वजह से डोंकी को फिर पछतावा हुआ और वो सफ़र करने लगा, उसको परेशानी आई। तो वो अब सोचने लगा कि उसने जो ट्रिक की थी वो अच्छी नहीं थी और उसका लक उसको और भी ज़्यादा फेवर नहीं करेगा। उसके बाद उस दिन के बाद डोंकी ने ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं की और सॉल्ट सेलर जो था वो अब खुश था कि उसका डोंकी अब ठीक हो गया है। तो इसमें जो हमारा मॉरल था, लक डज नॉट फेवर अस ऑलवेज।
इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने भी जो स्टोरी लिखनी है उसमें आपको मॉरल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे डोंकी के लक ने उसको हर रोज़ फेवर नहीं किया, ठीक है। अब हर बार लक को यूज़ नहीं कर सकते। सो आज हम सिर्फ ये 2 मॉरल्स नहीं पढ़ेंगे, 2 बेसिस, 3rd एंड 4th बेसिस हम नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट में करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।